everyone. Welcome back to the weekly webinar cum training session of Rajlakshmi Solutions Private Limited. On behalf of Rajlakshmi, I would like to welcome all the attendees here. I am Anagar representing Rajlakshmi Solutions Private Limited. So today we are going to talk about some technologies advantages in Tally Prime. So before moving ahead to the today's topic, let's take a small introduction of Rajlakshmi Solutions Private Limited. So we are into the multiple segments, that is sales, services, solutions, implementations and developments. We are also into the multiple softwares, that is Tally Prime, SAP B1, Bittrex 24 CRM, Skill India. So now moving ahead with the today's topic, but before that we'll just welcome our speakers. So the presentation will be conducted by Ms. Sonali. So Sonali, are you here? Yes, ma'am. Okay, and the live demonstration will be done by Mr. Aniket. Aniket, are you here? Yes, ma'am. And the resource person, Mr. Bhagwati Dandaria. Sir, are you here? Yeah, I'm here. Thank you. Hearty welcome all of you. So now I request Sonali and Aniket to move ahead with your presentation. Ma'am, my screen is visible? Yeah, it's visible. Okay, ma'am. Thank you. Hello, good evening all. Myself, Sonali, representing on behalf of Rajlakshmi Solutions Private Limited, on behalf of the management and the entire team of Rajlakshmi Solutions. I would like to welcome all the participants present here. So moving ahead to our today's topic, technological advantages in Tally Prime. First point is Tally Vault. Tally Vault is an enhanced security system that allows encryptions of your company data based on your business environment. If you want to maintain the privacy of the company that you have created in Tally Prime, use Tally Vault. Providing a Tally Vault password encrypts your company and all the transaction details, including the company name. Next time you open your company, you will need to first enter this password to view the company name and order details. Tally Vault जो है हर एक कंपनी को हमें सिक्योरिटी देने के लिए Tally Vault का पासवर्ड हमें देना यहाँ पे, मतलब Tally Vault का जो है बिजनेस इन्वायरमेंट में हमें डेटा सिक्योर करने के लिए हमें यहाँ पे सिक्योरिटी सिस्टम जरूरी रहता है। तो यहाँ पे हमें टैली प्राइम में एक प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए यहाँ पे हमें एक ऑप्शंस दिया गया है जो कि है टैली वॉल्ट का। टैली वॉल्ट पासवर्ड जो ऐसा है, तो इसमें हमारा जो कंपनी का ऑल ट्रांजेक्शन डिटेल्स जो है और कंपनी नेम है वो पूरा प्रॉपर तरीके से यहाँ पे सिक्योर्ड होता है। जैसे हम टैली वॉल्ट का ऑप्शंस यहाँ पे यूज करते हैं, तो नेक्स्ट टाइम जब भी हम वो कंपनी ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमें फर्स्ट ऑफ पहले यहाँ पे पासवर्ड देना पड़ेगा। उसके बाद ही यहाँ पे हमारा जो भी कंपनी नेम है और अंदर के जो भी ट्रांजेक्शन है डेटा है हमारा यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो ये टैली वॉल्ट का यहाँ पे हमें एक बेस्ट फीचर्स दिया गया है। सेकेंड पॉइंट इज just 1 minute. Tally audit. Audit is an important function of any business organization. It denotes that the business has true and fair transactions during the year. Tally Prime has an inbuilt feature, Tally Audit, which enable the auditor to perform an audit or track changes that affect the integrity of a transaction, such as change made to date, ledger masters, and amounts in the voucher are reflected in Tally audit listing. ऑडिट फीचर्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ऑडिट जो है हमें एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है यहाँ पे वर्किंग में। तो जो भी बिजनेस का हमारा ट्रांजेक्शन्स हो रहा है या जो भी हम यहाँ पे रिकॉर्ड्स कर रहे हैं तो वो हमारे सही है कि नहीं, वो हमें यहाँ पे मेंटेन करने के लिए ऑडिट जो है ऑडिट फीचर्स इम्पोर्टेंट है। तो टैली प्राइम में हमें ये फीचर्स डिफॉल्ट में इनबिल्ट में दिया गया है। तो यहाँ पे जो है टैली ऑडिट फीचर्स को हम अगर एनेबल करते हैं तो जब भी हम ऑडिट करेंगे, ऑडिट करते टाइम पे अगर चेक करते हैं तो यहाँ पे हमें ट्रैक होता है। कोई भी ट्रांजेक्शन में अगर हम चेंजेस करते हैं तो यहाँ पे हम डेट वाइज,
लेजर मास्टर वाइज या अमाउंट्स वाइज जो है हम पूरा वाउचर यहाँ पे चेक कर सकते हैं, यहाँ पे ट्रैक होता है। ये हमें ऑप्शन दिया गया है टैली ऑडिट फीचर्स में। नेक्स्ट टॉपिक इज security control. We care for your business data. Data security has been a matter of concern to the business owner, as most businesses depend on the confidently of the information. To secure your business data, Tally Prime offers a variety of security features. You can password protect your company data, define security levels for different users, and do much more with the security features in Tally. The administrator can give different permissions to different kinds of users based on the company's requirement. कोई भी बिजनेस का जो डेटा है सिक्योर यहाँ पे रखने के लिए हमें डेटा को सिक्योरिटी देना जरूरी है। इससे क्या होता है, हमारे बिजनेस का जो भी डेटा है वो हम प्रॉपर तरीके से यहाँ पे मतलब सिक्योर रख सकते हैं। तो बिजनेस का डेटा सिक्योर रखने के लिए टैली प्राइम में हमें एक ऐसा ऑप्शन दिया गया है सिक्योरिटी फीचर्स में, जैसे कि उससे हम एडमिनिस्ट्रेटर लेवल पे कोई भी यूजर्स को अगर हमें एक्सेस देना है तो वो हम यहाँ पे सिक्योरिटी लेवल पे अलग अलग यूजर्स को जो हमें एक्सेस देना है, अलग अलग जो उनके ट्रांजेक्शन्स लेवल पे हम उनको परमिशन यहाँ पे दे सकते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटर लेवल पे पूरा एक्सेस फुल एक्सेस एडमिनिस्ट्रेटर को रहता है, और यूजर्स वाइज हमें यहाँ पे जो भी हम मेंशन करेंगे वो हम कंपनी की जो रिक्वायरमेंट रहेंगी उस हिसाब से हम यहाँ पे परमिशन दे सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन, बैकअप एंड रिस्टोर. It is recommended that you take a regular backup of your company data to safeguard against any form of data loss. This way you can prepare for any adverse event such as a virus attack, a hard drive crash, and so on. Using Tally Prime, you can easily take a backup of your company data and restore it whenever needed. डेटा, यहाँ पे डेटा लॉसेस होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं, जैसे कि वायरस अटैक या हार्ड डिस्क क्रैश। तो इस वजह से हमारा डेटा यहाँ पे लॉस न हो जाए, हमें रेगुलर लेवल पे यहाँ पे बैकअप कंपनी के डेटा का बैकअप लेना जरूरी है। तो टैली प्राइम में हमें एक ऐसा इजी फीचर्स दिया गया है जिससे हम इजीली हमारे डेटा का बैकअप ले सकते हैं और वो बैकअप हम रिस्टोर भी कर सकते हैं। You can also use the backup feature to move your data to another computer or share it with your accountant or auditor for verifications. Sharing the backup of the data is a much more reliable method than directly copying the company data folder. It is recommended that you backup your data in a location that is separate from the original. जो भी हम बैकअप लेंगे वो बैकअप अगर हमें एक कंप्यूटर में से अनदर कंप्यूटर में अगर शेयर करना है तो बैकअप जो लिया है हमने बैकअप का फीचर्स का हम यूज करके वो बैकअप हम एक कंप्यूटर से सेकंड कंप्यूटर में शेयर भी कर सकते हैं। अगर कोई अकाउंटेंट को या ऑडिटर को हमारा डेटा वेरिफिकेशन के लिए अगर देना है तो हम ये बैकअप वाला फोल्डर शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे जो है हमारा डेटा का लोकेशन जो रहता है वो लोकेशन यहाँ पे हम यूज ना करके बैकअप के लिए हम अलग एक सेपरेट लोकेशन यहाँ पे यूज करेंगे बैकअप के लिए। तो इससे क्या है, हमारा ओरिजिनल जो डेटा है वो भी एक वो तो सेव ही रहता है हमारे अलग फोल्डर में, और हमारा बैकअप भी एक अलग फोल्डर में सेव रहेगा। तो इसके लिए बैकअप का फोल्डर और हमारा ओरिजिनल डेटा का लोकेशन जो है वो सेपरेट होना जरूरी है। स्प्लिट कंपनी. Split is another useful tool to manage the volume of your data. If your business prefer to start on a fresh note every financial year, then you can split your data and maintain a fresh batch every year. Once all your transactions are recorded, reviewed, and closed for the year, you can proceed to split the data. This will help you maintain your books neatly for audit, tax compliances and so on. स्प्लिट का जो ऑप्शन है हमें यहाँ पे बहुत यूजफुल से हमारा जो डेटा का वॉल्यूम है वो मैनेज करने के लिए।
अगर बिजनेस में हम कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो फर्स्ट टाइम हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसमें हमारा जो भी कंपनी होता है उसमें हम पूरे ट्रांजेक्शन जो है मेंटेन करते हैं। तो उसके साथ साथ हमारा जो है ट्रांजेक्शन भी रिकॉर्ड हो जाते हैं और हमारा जो मास्टर और लेजर है वो भी यहाँ पे रिकॉर्ड होते हैं। हमारा लास्ट फाइनेंशियल ईयर अगर क्लोज होता है तो उसको आगे हम यूज करने के लिए यहाँ पे स्प्लिट का ऑप्शन यूज करते हैं। तो टैली प्राइम में हमें यहाँ पे एक स्प्लिट का ऑप्शन भी दिया है, जो कि हम हमारे प्रीव्यू कंपनी के ऑल ट्रांजेक्शन्स एंड मास्टर आगे न्यू फ्रेश कंपनी के लिए यूज कर सके। तो ये स्प्लिट का ऑप्शन यूज करके हम पूरा मतलब हमारा जो भी प्रीव्यू ईयर का मास्टर लेजर जो भी है स्टॉक आइटम जो है हम फ्रेश कंपनी के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन यूज करके हम ये हमारा स्प्लिट न्यू फ्रेश कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट टू डेटा। In your business, you record all your transactions depending on your day-to-day activities. If you have created a company in TallyPrime, you might want to use the same data in the company and continues to use them. If you are already using TallyPrime and have created your masters and transactions, you can export the data to any location and import it back to a new company in TallyPrime. The import feature in TallyPrime enables you to import your external data seamlessly with TallyPrime. You can not only maintain your business data but also export it in a jiffy. You can export masters and transactions from anywhere in the product without moving out from the screen in which you are working. You can also export the reports in different formats as per your business requirement. हमारा जो भी है कंपनी बिजनेस में हम एक कंपनी अगर रिकॉर्ड करते हैं तो उसमें हमारे डे वाइज डे टू डे एक्टिविटीज होती है। तो यहाँ पे हमारे पूरे ट्रांजेक्शन जो है रिकॉर्ड होते हैं। यही ट्रांजेक्शन्स जो है या हमारे मास्टर से लेजर है वो अगर हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना है तो टैली प्राइम में हमें एक इंपोर्ट का फीचर्स दिया है। वो इंपोर्ट का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का फीचर्स यूज करके हम उसमें से हमारा जो भी है ट्रांजेक्शन से या लेजर से या मास्टर से वो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वो एक्सपोर्ट करने के बाद हमें यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन दिया है इंपोर्ट के लिए। अगर हम न्यू कंपनी यहाँ पे स्टार्ट करें उसमें हमें अगर कुछ बिजनेस का डेटा अगर मेंटेन रखना है तो हम जो है यहाँ पे इंपोर्ट का फीचर्स यूज करके वो भी मेंटेन कर सकते हैं। अगर कोई भी ट्रांजेक्शन और मास्टर्स जो है वो हमें एक्सपोर्ट करना है तो हमारा जो स्क्रीन चल रहा है टैली प्राइम में उसको मूव आउट विदाउट मूव आउट करके हम वही स्क्रीन से वो लेजर या स्टॉक आइटम या मास्टर्स हम वहां से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये जो है टैली प्राइम में हमें ये डिफरेंट फीचर्स दिए गए हैं जिससे हम हमारा वर्किंग जो है इजी लेवल पे कर सकते हैं। So now it is a time for the live demo. I request to Aniket proceed ahead for the live demo session. Thank you. Thank you, Sonali madam. That was a nice presentation from your side. Hello everyone. My name is Aniket, presenting from Raj Lakshmi Solutions Private Limited. So आज हम टैली में देखने वाले कुछ इम्पोर्टेंट फीचर, मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर एक्चुअली जो कि हमारे डे टू डे लेवल का वर्किंग में बहुत उसका यूजफुल वर्किंग होने वाला है। So first I will share my screen. So my screen is visible, ma'am? Yeah, it's visible. Yes, thank you. So जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ABC प्राइवेट लिमिटेड यहाँ पे मैंने कंपनी ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएट की है। सो इसको सबसे पहले ओपन कर लेते हैं। फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि सोनाली मैडम ने हमें बताया टैली वॉल्ट का फीचर, जिसकी मदद से हम हाई सिक्योरिटी पासवर्ड हम कंपनी को सेट करते हैं जिससे हमारी प्राइवेसी मेंटेन हो सके कंपनी में। जैसे किसी यूजर्स को हमें कंपनी का कुछ भी टैली में कुछ भी कंपनी का डिटेल्स उनको शो नहीं करना है, वो कंपनी एक लिमिटेड यूजर्स को ही दिखनी चाहिए या फिर ओनली ओनर ही उसे देख पाएगा। तो उसके लिए एक टैली वर्ल्ड का ऑप्शन हमें टैली में दिया गया है। सबसे पहले हम उसके करेंगे। यहाँ पे हमें एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा टैली वर्ल्ड का, यहाँ पे हमें क्लिक कर देना। एंड ABC प्राइवेट लिमिटेड के लिए हम पासवर्ड सेट करना चाहते हैं टैली वर्ल्ड का, इसको एंटर कर लेते हैं। एंड पासवर्ड हम यहाँ पे डालते थे 1 2 3 4 5।
एंड इसको एंटर करके पासवर्ड कंफर्म कर लेंगे एंड इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। जैसे हम इसको एक्सेप्ट करेंगे ये हमें मैसेज पॉपअप मैसेज देखने को मिलेगा, दिस विल क्लोज ऑल द ओपन रिपोर्ट्स वाउचर मास्टर विदाउट सेविंग चेंजेस यू माइट हैव मेड, यू आर श्योर वांट टू सेट द टैली वर्ड पासवर्ड। इसको हम यस कर लेंगे। हम पासवर्ड सेट करना चाहते हैं, कंफर्म करेंगे। डू यू वांट टू क्रिएट अ कॉपी फॉर एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। अगर हम इसको यस करेंगे तो टैली वर्ड पासवर्ड लगा हुआ एक हमारी सेपरेट कंपनी क्रिएट हो जाएंगी, डुप्लीकेट कंपनी क्रिएट हो जाएंगी एक्चुअली। ये जो हमारी रनिंग कंपनी है ये एज इट इज वैसे ही रहेंगी, एंड जो डुप्लीकेट कंपनी क्रिएट होंगी उसको उसे हमें उस कंपनी में हमने टैली वर्ड पासवर्ड लगाया होगा। सो बेसिकली एक न्यू कंपनी क्रिएट हो जाएंगी ऑटोमेटिकली बैकएंड में। और अगर हम यहाँ पे नो कर लेते तो जो कंपनी यहाँ पे ओपन है ओरिजिनल कंपनी में ही टैली वर्ड पासवर्ड यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो इसको हम यस कर देते, हमारी न्यू कंपनी यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगी। चेंजिंग टैली वर्ड एबीसी प्राइवेट लिमिटेड यहाँ पे आ जाएगा। जैसे यहाँ पे पासवर्ड लग जाएगा हमें न्यू कंपनी यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। जस्ट वेट फॉर मिनट। ये प्रोसेस हो जाएगा। एक्चुअली ये डेटा पर भी डिपेंड रहेगा हमारा। मैंने न्यू कंपनी क्रिएशन का ऑप्शन यस किया था तो यहाँ पे न्यू कंपनी क्रिएट होने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। अगर हम वो ऑप्शन नो कर लेते हैं तो वो विद इन मिनट वो अपडेट भी हो जाएगा पासवर्ड। सो ये कंप्लीट हो गए हैं। क्रिएटेड न्यू कंपनी एंटर कर लेते हैं। Wait, I'm restarting my screen. Ma'am, my screen is visible, ma'am. Yeah, it's visible. यस यस। सो जैसे भी यहाँ पे एक न्यू कंपनी फर्स्ट वाली हमें यहाँ पे शो हो रही है जिसमें हमें स्टार करके यहाँ पे दिख रहा है, मतलब इस कंपनी में हमने टैली वर्ड पासवर्ड सेट किया है। इस कंपनी का नेम या फिर कुछ भी डिटेल्स हमें नहीं दिखेंगी जब तक हम इसको टैली वर्ड पासवर्ड फिल करके ओपन नहीं कर लेते हैं। तो इसको ओपन करने के लिए यहाँ पे इस तरीके से ऑप्शन आएगा, जो हमने टैली वर्ड पासवर्ड यहाँ पे सेट किया है 1 2 3 4 5 वो हमें यहाँ पे फिल करना है एंड ये कंपनी यहाँ पे ओपन हो जाएगी। सो इस तरीके से टैली वर्ड हमें फीचर एक हाई सिक्योरिटी के लिए हम बेस्ट ऑप्शन दिया गया है टैली पे। सेकंड ऑप्शन हम यहाँ पे देख लेते हैं। Just wait, my तो इस कंपनी को हमने ओपन कर लिया यहाँ पे। सेकंड ऑप्शन हम यहाँ पे देखते हैं सिक्योरिटी कंट्रोल। सिक्योरिटी कंट्रोल में एक्चुअली क्या होता है, सबसे पहले हम यूजर वाइज यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। जैसे हमारे मल्टीपल यूजर्स हमारे लाइन में या फिर कंपनी में वर्क कर रहे हैं टैली में, सो हर किस यूजर को हमें कौन से फीचर का कौन से रिपोर्ट्स का एक्सेस देना है, किसी यूजर को नहीं देना है, तो वो हमें यहाँ पे सेट करने के लिए सिक्योरिटी कंट्रोल का एक फीचर टैली में दिया गया है। उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे कंपनी में आते हैं, यहाँ पे अल्टर में हम क्लिक करेंगे। सिक्योरिटी फीचर इनेबल करने के लिए अल्टर में यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है कंट्रोल यूजर एक्सेस टू कंपनी डाटा। इस ऑप्शन को यहाँ पे शो होने के लिए यहाँ पे F12 में ऑप्शन है यूज यूजर एक्सेस कंट्रोल,
इसको हमें यस करना जरूरी है, तभी हमें यहाँ पे ये ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसको हमें यस कर लेना। एंड यहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड हमें फिल करना है, जो कि रहेगा एडमिन का मेन यूजर आईडी पासवर्ड यहाँ पे रहेगा। इसको हम डाल देते हैं यहाँ पे ए, एंड पासवर्ड डाल देते हैं ए, यस कर लेंगे एंड इसको सेव कर लेंगे। सो दैट हमारा ये एडमिन यूजर आईडी पासवर्ड हमने क्रिएट कर लिया। जैसे हम इसको क्रिएट करेंगे, यहाँ पे हमें कुछ न्यू ऑप्शन देखने को मिलेंगे, यूजर एंड पासवर्ड एंड यूजर रोल। तो हम सबसे पहले यहाँ पे यूजर एंड पासवर्ड में जाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमें यूजर्स क्रिएट करना है, जितने भी हमारे टैली यूजर्स है लैन में, कंपनी में, तो वो हम यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल सबसे पहले यूजर हम यहाँ पे डेटा एंट्री वाला ले लेते हैं। फर्स्ट यूजर यहाँ पे हम यूजर नेम एंड पासवर्ड हमें यहाँ पे सेट करना है। ये हम अपने हिसाब से अपने मन से यहाँ पे इसको नाम दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने यूजर 1 ले लिया एंड इसको पासवर्ड दे दिया 1 2 3। सेम हम डेटा एंट्री यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं यूजर 2। ऐसे हम मल्टीपल यूजर्स यहाँ पे क्रिएट करके उसको एक्सेस अलो डिसअलो जो भी हम रिपोर्ट्स देना चाहते हैं वो हम दे सकते हैं। इसको हम सेव कर लेते हैं। सेकंड थिंग, यहाँ पे जैसे यूजर 1 यूजर 2 को हमने यूजर तो यहाँ पे बना लिए है, लेकिन कौन से यूजर्स को क्या एक्सेस देना है, कौन सा रिपोर्ट्स एक्सेस होना चाहिए, कौन सा रिपोर्ट एक्सेस नहीं होना चाहिए, उसके लिए हमें जाना है यूजर रोल्स में। यहाँ पे हम उसका बेसिक जो रोल है वो हमने डेटा एंट्री लिया था, तो डेटा एंट्री में हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हमें देख सकते हैं यहाँ पे एंटर करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, डिसअलो द फॉलोइंग फैसिलिटी एंड अलाउ द फॉलोइंग फैसिलिटीज। डिसअलो में हम यहाँ पे जो भी रिपोर्ट्स हम सेलेक्ट करेंगे उस रिपोर्ट्स का एक्सेस इस यूजर को नहीं मिलेगा, एंड जो भी रिपोर्ट्स हम अलाउ में लेंगे वो रिपोर्ट्स वो यूजर एक्सेस कर सकता है बेसिकली। सो यहाँ पे एक बाय डिफॉल्ट डेटा एंट्री में जो भी ऑप्शन है डिसअलो में, यहाँ पे कुछ रिपोर्ट्स है, कुछ मास्टर्स का यहाँ पे एक्सेस इनको हटाया है। तो वो अगर हम चेंज करना चाहते तो यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। बेसिकली इस यूजर्स को अकाउंटिंग मास्टर का एक्सेस नहीं है, उसका क्रिएट नहीं कर सकते, अल्टर नहीं कर सकते, या फिर अगर हमें इसमें कुछ चेंज करना है वो क्रिएट कर पाए लेकिन अल्टर नहीं कर पाए, तो यहाँ पे अल्टरेशन का एक्सेस हमें हटाना है, अल्टर का एक्सेस हटाना है। एंड क्रिएशन का हम यहाँ पे अलो में ले सकते हैं अकाउंटिंग मास्टर्स का, सो दैट वो यूजर्स वो पर्टिकुलर यूजर यहाँ पे मास्टर्स क्रिएट कर पाए लेकिन अल्टर नहीं कर पाए। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे जितने भी रिपोर्ट्स है टैली में उसको हम अलो डिसअलो इस यूजर्स के लिए कर सकते हैं। इसको हम सेव कर लेंगे। थर्ड पॉइंट है यहाँ पे टैली ऑडिट का। टैली ऑडिट फीचर्स के लिए इसको इनेबल करने के लिए सबसे पहले हमें फिर से कंपनी में जाना है। टैली ऑडिट ये एक बेसिकली हम कंपनी में एक ओवरव्यू देखने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। एक ऑडिटर, एज ए ऑडिटर हम देख सकते हैं कंपनी में कितने एंट्रीज हुए, कितने अल्टर हुए, कौन से यूजर्स ने उसको अल्टर किया है। तो वो सब चीज़ें हम यहाँ पे टैली ऑडिट में देख सकते हैं। सबसे पहले हम अल्टर में जाते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन हमें देखने को मिल जाएगा, इनेबल टैली ऑडिट फीचर। इसको हम यस कर लेते हैं एंड इसको सेव कर देते हैं। जैसे हम इसको सेव करेंगे, सबसे पहले एक किसी यूजर्स के लॉगिन से हम एक एंट्री क्रिएट करके देख लेते हैं ताकि मैं आपको रिपोर्ट्स में दिखा पाऊँ। इसको लॉग आउट कर लेते हैं, कंपनी लॉगिन कर लेते हैं। हम यहाँ पे लॉगिन करेंगे यूजर 1 से। जैसे हम कोई वाउचर यहाँ पे क्रिएट करेंगे, कैश वाउचर, यहाँ पे 23rd ऑफ अगस्त यहाँ पे एक एंट्री हमने क्रिएट की है यूजर 1 से। अब हम एडमिन से लॉगिन करके देखेंगे कि ये इसका ऑडिटर हमें कैसे यहाँ पे रिपोर्ट देखने को मिल जाएगा। यूजर नेम है एंड पासवर्ड है, ये हमारा एडमिन का आईडी पासवर्ड है। हमें जस्ट सिंपल यहाँ पे गो टू बटन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे हमें टाइप करना है ऑडिट। यहाँ पे हम देख सकते हैं ऑडिट स्टैटिस्टिक्स हम देख सकते हैं। वाउचर टाइप
मास्टर वाइज एंड यूजर वाइज। यहाँ पे 3 अलग अलग रिपोर्ट भी हम देख सकते हैं। अगर हम यूजर वाइज सेलेक्ट कर लेते हैं तो यूजर 1 एंड यूजर 2 का हम यहाँ पे देख सकते हैं रिपोर्ट्स यूजर वाइज, कि कितने एंट्री उसने क्रिएट की है, कितने एंट्री अल्टर किए हैं। तो यहाँ पे हम रिपोर्ट देख सकते हैं। जैसे यूजर 1 ने यहाँ पे एक एंट्री एंटर किया है, अल्टर अभी तक नहीं किया है। सो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे डे बुक में जाते हैं। ये जो यूजर 1 ने एंट्री यहाँ पे क्रिएट की है, इसका हम अमाउंट यहाँ पे चेंज कर देते हैं, 200 इसको कर देते हैं। ये चेंज अमाउंट चेंज हुआ है एडमिन से। अब हम फिर से ऑडिट रिपोर्ट में जाते हैं, यूजर वाइज जाते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कितने एंट्रीज एंटर हुई है, कितने अल्टर हुए है। तो वो रिपोर्ट हम यहाँ पे देख सकते हैं। हम यहाँ पे डे बुक में भी चाहिए तो यहाँ पे भी देख सकते हैं। यहाँ पे F12 करेंगे एंड यहाँ पे शो क्रिएट एंड एंटर अल्टर बाय, यहाँ पे इस ऑप्शन को हम यस कर लेंगे। सो एंट्री के यहाँ पे जस्ट नीचे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन से यूजर ने वो उस एंट्री को एंटर किया है और कौन से यूजर्स ने उस एंट्री को अल्टर किया है। सो ये हो गया ऑडिट, टैली ऑडिट फीचर। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं बैकअप एंड रिस्टोर ऑप्शन। जैसे कि मोस्ट ऑफ द टाइम पर कंप्यूटर में या फिर लैपटॉप में हमारा वायरस अटैक होता है या फिर हार्ड डिस्क क्रैश होने के चांसेस बहुत होते हैं, जिसकी वजह से हमारा टैली का डाटा लॉस होने का चांसेस रहता होता है। उसके लिए हमें सबसे पहले टैली का डेटा का बैकअप हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है, ताकि अगर कुछ भी इश्यूज के कारण डेटा लॉस होता है तो एक सेफ्टी के लिए हमारा बैकअप साइड पे होना ज़रूरी है। उसके लिए सबसे पहले हम बैकअप का प्रोसेस यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले Alt Y डेटा पे यहाँ पे क्लिक करेंगे हम। यहाँ पे बैकअप का ऑप्शन है, बैकअप में क्लिक करेंगे। बैकअप डेस्टिनेशन पाथ, डेस्टिनेशन पाथ मतलब जिस लोकेशन में हमें डेटा बैकअप सेव करना है उस लोकेशन यहाँ पे हमें पेस्ट कर देना। कॉपी पेस्ट भी हम कर सकते हैं या फिर सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव यहाँ से करके सेलेक्ट कर सकते हैं। सो सी ड्राइव में हम यहाँ पे बैकअप स्टोर करने जाते हैं। सबसे पहले एक चीज़ यहाँ पे हमें ध्यान रखनी जो बहुत ज़रूरी है, बैकअप डेटा पाथ एंड कंपनी डेटा पाथ वो दोनों हमें अलग अलग रखना है। यहाँ पे सी ड्राइव हम सेलेक्ट कर लेते हैं एंड यहाँ पे कंपनी सेलेक्ट कर लेते हैं, एंड ऑफ लिस्ट कर लेंगे एंड इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। जस्ट 1 मिनट, यहाँ पे बैकअप लोकेशन हम अभी के लिए यहाँ पे डेटा पाथ ही सेट कर देते हैं ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ। एंड इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं एक टीबी के फाइल फॉर्मेट यहाँ पे एक जनरेट हुआ है, फाइल जनरेट हुई है। ये हमारा टैली का बैकअप है। सेम टीबी के फाइल को हम यहाँ पे रिस्टोर भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं जिसमें हम बैकअप रिस्टोर करेंगे। तो इस बैकअप को हमें रिस्टोर करने के लिए सबसे पहले जिस लोकेशन पे भी ये बैकअप स्टोर है हमें वो लोकेशन कॉपी कर लेना है। यहाँ पे Alt Y में हम जाएंगे, रिस्टोर का ऑप्शन है यहाँ पे Alt Y में बैकअप के जस्ट नीचे ही, यहाँ पे क्लिक करेंगे। रिस्टोर डेस्टिनेशन पाथ हम सेम जो न्यू फोल्डर हमने बनाया था वहाँ पे वो फोल्डर का पाथ यहाँ पे पेस्ट कर देंगे जो हमने कॉपी किया है। एंड बैकअप पाथ, जो पाथ हमने कॉपी किया है वो सिलेक्ट कर लेंगे। एंड ये बैकअप हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है, बैकअप कब लिया है एंड टाइम, डेट एंड टाइम यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसको एंटर सेलेक्ट करके हम यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेंगे। सो अगर हम यहाँ पे देखने जाएंगे, यहाँ पे देखो हमारा बैकअप भी यहाँ पे रिस्टोर हो गया है। सो इस तरीके से हम यहाँ पे बैकअप एंड रिस्टोर डेटा का कर सकते हैं। ये हम किसी को ऑडिटर को, सीए को डेटा जब हम शेयर करते हैं तो हम डायरेक्टली टीबी के फाइल, बैकअप फाइल भी हम उनको डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं सेपरेटली। नेक्स्ट यहाँ पे फीचर है स्प्लिट कंपनी डेटा।
जब भी हमारा फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होता है, किसी फाइनेंशियल ईयर, पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर का डेटा हमारा कंप्लीट हो जाता है, फाइनल हो जाता है, नेक्स्ट ईयर के लिए हमें उस कंपनी का डेटा स्प्लिट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ईयर वाइज हमें डेटा प्रॉपर मेंटेन भी करना ज़रूरी है। उसके लिए सबसे पहले स्प्लिट करने के लिए हम यहाँ पे ऑप्शन पे आते हैं, अल्ट वाई में बैकअप रिस्टोर के जस्ट नीचे यहाँ पे स्प्लिट कंपनी डाटा का ऑप्शन दिया गया है। स्प्लिट का डाटा पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले स्प्लिट करने से पहले यहाँ पे वेरीफाई डाटा एंड स्प्लिट डाटा दो ऑप्शन दिए गए हैं। डाटा स्प्लिट करने से पहले हमें वेरीफाई करना पड़ेगा कि उसमें अगर कुछ इश्यूज हैं तो वो इश्यूज हमें सबसे पहले रिजॉल्व करने पड़ेंगे, तभी हम डाटा स्प्लिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखने को मिल सकता है नो एरर फाउंड, तो अगर इसमें कोई एरर नहीं है तो हम आगे डाटा स्प्लिट प्रोसेस कर सकते हैं। यहाँ पे स्प्लिट डाटा कंपनी 2022 से स्टार्ट अगर हो रही है तो यहाँ पे हम 1 अप्रैल 23 ले रहे हैं, मतलब करंट ईयर का डाटा हम अलग कर रहे हैं, लास्ट ईयर का 22 का अलग करेंगे। एंड इसमें सबसे पहले यहाँ पे हम देखने को देख सकते हैं दो कंपनी ऑटो क्रिएट यहाँ पे होंगी। ओरिजिनल कंपनी वैसे ही रहेंगी एंड यहाँ पे न्यू दो कंपनी क्रिएट होंगी। फर्स्ट जो कंपनी रहेंगी 22 से स्टार्ट होंगी एंड सेकंड जो कंपनी रहेंगी 23 से स्टार्ट होंगी, 1 अप्रैल 23 से। इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। कंटिन्यू टू स्प्लिट कंपनी डाटा, यहाँ पे यस कर लेंगे। स्प्लिटिंग डाटा एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, ये जो प्रोसेस 100% हो जाएगा तो हमारे न्यू कंपनी भी क्रिएट हो जाएंगी। एंड ये जो प्रोसेस ये प्रोसेस पूरा टाइम जो लगेगा इस पर, ये डाटा पर भी डिपेंड रहेगा। अगर आपका मल्टीपल बहुत सारे सालों से डाटा इसमें कंपनी में है तो उसको भी स्प्लिट होने के लिए टाइम लग सकता है। डेटा पर ये टोटली डिपेंड रहेगा आपके। जैसे इसमें हो रहा है स्प्लिट, ज़्यादातर टाइम यहाँ पे नहीं लगेगा, विद इन मिनट ये अपडेट भी हो जाएगा। सो ये स्प्लिट हमारा हो गया यहाँ पे। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं 3 कंपनी यहाँ पे ओपन है। फर्स्ट एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, ये हमारी ओरिजिनल कंपनी थी जिसमें 22 23 दोनों साल का डेटा हमारा इंक्लूड है। सेकंड यहाँ पे 1 अप्रैल ब्रैकेट में ऑटोमेटिक यहाँ पे कंपनी रिनेम हुई है, न्यू कंपनी क्रिएट हुई है। ये 1 अप्रैल 22 से 31 मार्च 23 तक का ये इसमें डाटा रहेगा। एंड थर्ड 1 अप्रैल 23, इसमें करेंट ईयर का जो भी है डाटा यहाँ पे इसमें रहेगा। इसको चाहिए तो हम बाद में रीनेम भी कर सकते हैं। यहाँ पे अल्ट के में जाके जो भी ब्रैकेट में सामने 1 अप्रैल आपके हिसाब से हम यहाँ पे उसको रीनेम कर सकते हैं। अल्टर में जाके यहाँ पे सेलेक्ट कंपनी सेलेक्ट करनी है एंड इसको रीनेम करना है। एंड लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ डाटा। सो सबसे पहले हम ये जो स्प्लिटेड कंपनी है इसको हम लॉग ऑफ कर लेते हैं। सबसे पहले एक्सपोर्ट डाटा का हम यहाँ पे देख सकते हैं। एक्सपोर्ट का यहाँ पे ऊपर ऑप्शन दिया गया है, एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम एक्सपोर्ट में मास्टर एंड ट्रांजिशन जितने भी कंपनी डाटा में बुक है वो सब हम यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं वन टाइम में। सबसे पहले हम यहाँ पे मास्टर अगर हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, मास्टर पे क्लिक करेंगे। मास्टर में यहाँ पे हम देख सकते हैं XML फॉर्मेट हम यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर हमें किसी अदर फॉर्मेट में चाहिए जैसे PDF एक्सेल में, तो वो भी हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। मास्टर्स का नहीं लेकिन ट्रांजिशन का बिल्कुल हम कर सकते हैं। हम इसको कॉन्फ़िगर करके कुछ हमारे अपने हिसाब से यहाँ पे सेटिंग भी कर सकते हैं। इंक्लूड डिपेंडेंट मास्टर हमें यस रखना है। नेक्स्ट हम यहाँ पे एक्सपोर्ट क्लोजिंग बैलेंस एज ओपनिंग बैलेंस, अगर हम इसको यस करना चाहे तो हम कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी लेजर्स का, किसी भी मास्टर्स का अगर कोई या इस कंपनी करंट कंपनी में क्लोजिंग बैलेंस बस अगर है तो जिस कंपनी में हम इसको इंपोर्ट करेंगे वहाँ पे एज अ ओपनिंग करके वो इंपोर्ट होगा। उसके लिए अगर आपको वो चाहिए तो हम यहाँ पे ये ऑप्शन यस कर सकते हैं। टाइप ऑफ मास्टर हम यहाँ पे ऑल मास्टर सेलेक्ट कर लेते हैं एंड इसको सेव कर देते हैं एंड यहाँ पे हम इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे। एक्सपोर्ट लोकेशन हमने दिया है, डेस्कटॉप पे वेबिनार का फोल्डर है, वहाँ पे XML फाइल एक एक्सपोर्ट को होकर जनरेट हो जाएंगी।
तो हम यहाँ पे देख सकते हैं मास्टर का एक न्यू फाइल यहाँ पे जनरेट हुआ है। जो भी एक्सपोर्ट लोकेशन हमने दिया यहाँ पे मास्टर का एक न्यू फाइल जनरेट हुआ है। सेम फाइल को अगर हमारे मल्टीपल कंपनीज है एंड वहाँ पे सेम मास्टर यूज होते हैं तो इसी फाइल को हम उस कंपनी में टैली में जाके इंपोर्ट कर सकते हैं। मैं आपको एक इंपोर्ट का भी प्रोसेस यहाँ पे दिखा देता हूँ मास्टर्स का। फॉर एग्जांपल अभी इस कंपनी को हम यहाँ पे लॉग आउट कर लेते हैं। यहाँ पे एक फ्रेश कंपनी हम यहाँ पे न्यू क्रिएट कर लेते हैं। ये रहेंगी हमारी डेमो कंपनी। पुरानी कंपनी का हमारे यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 22 था, तो यहाँ पे 22 कर लेंगे। यहाँ पे हम जो XML फाइल मास्टर्स की हमने सेलेक्ट एक्सपोर्ट की थी वो हम यहाँ पे इस कंपनी में इंपोर्ट करेंगे। अभी यहाँ पे इंपोर्ट का ऑप्शन दिया गया है। सबसे पहले कॉन्फ़िगर करेंगे, शो मोर करेंगे एंड कुछ यहाँ पे सेटिंग्स हमें करना है। टैली एडिट डिटेल लॉग हम यहाँ पे यस करके रखना है ताकि अगर कुछ एरर इंपोर्ट में आता है तो वो हमें डिटेल में दिख जाए कि किस चीज़ का वहाँ पे एरर आया है। यहाँ पे इंपोर्ट में आते हैं, मास्टर्स में हम यहाँ पे आते हैं क्योंकि हमने मास्टर्स फाइल एक्सपोर्ट की है। यहाँ पे XML फॉर्मेट हम सेलेक्ट कर लेंगे एंड इस पाथ में हमने वो फाइल रखी थी। तो यहाँ पे फाइल पाथ डालने के बाद फाइल हमें शो हो जाएगी। बस जस्ट हमें फाइल सेलेक्ट कर लेनी है एंड यहाँ पे कुछ हमें बिहेवियर्स ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। जैसे अगर मास्टर्स ऑलरेडी कंपनी में है तो यहाँ पे कंबाइन ओपनिंग बैलेंस भी हम कर सकते हैं। और अगर हमें जो भी ऑलरेडी अवेलेबल मास्टर्स है उसको इग्नोर करना है, इग्नोर डुप्लीकेट हम यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे हमारी फ्रेश कंपनी है इसलिए हम यहाँ पे मॉडिफाई विथ न्यू डाटा हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। बैकअप कंपनी डाटा बिफोर इंपोर्ट इसको हम नो कर लेंगे क्योंकि ये फ्रेश कंपनी है एंड इसको यस कर लेंगे। तो जैसे वो इंपोर्ट यस है, इंपोर्ट कब स्टार्ट हो जाएगा, इंपोर्ट कंप्लीट सक्सेसफुली एंटर कर लेंगे। अभी हम यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट में जाके देख सकते हैं लेजर्स में बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कैश का यहाँ पे लेजर ऑलरेडी क्रिएट होता है न्यू फ्रेश कंपनी में। सो हम यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लेजर्स जो भी है इंपोर्ट हो चुके हैं। सो ये ओवरऑल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का प्रोसेस टैली में है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एवरीवन। Thank you, Sonali and Aniket, for your presentation. So now it's time for overview of the today's session. It's over to you, sir. Yeah, thank you, team. So myself is Bhagwati Nanaria. As usual, but Tally have a lot of features, and most of the peoples are aware about the Tally and they are using Tally, but most of the people are not aware about the capacity and capability of the Tallies. So many of them are aware about this feature, but most of the peoples we just watch in the market. It's feedback of the customers. Same way आप देख पा रहे हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट, आपके डेटा एक कंपनी से दूसरे कंपनी में इंपोर्ट करने हैं। Just you can export in the XML file and import. Same way you can export any of the data in any of the format like PDF, JPEG, Excel like that, and text file like that. So there is a lot of feature like that. So that is very useful for the every of the organization, and they can play with the data, and they can play with all the features and security enhancement all the stuff. So ये जो छोटे-छोटे features है हमने ट्राई की है कि हम आपके तक पहुंचाएं, और you can utilize all these features and you can get the advantage and you can run your business smoothly. So this is the overall idea, and we are running the many of the Raj Lakshmi is running many of the offer in the every month. So you can also connect with our account manager. They are providing the support and all this stuff to you, and you can take the advantage of our offers. You can take the advantage of all these features you want to implement, and you will get the benefits in terms of the pricing and all that stuff. So that's it from my side. Thank you. Thank you so much, sir. So if anyone have any questions or you want any regarding supports or any new requirement discussion, you can just connect to your key account manager.
Okay. So soon this session will be uploaded in the YouTube channel. So be connected to the social media to get more updates. Thank you everyone. So now we'll wind up the session. Thank you.